minus all these values, -1 and +1, except these two values, these two numbers. Other numbers are okay. For that, this is defined or not defined. Okay, this is the range in case of this. Now, the reverse is what? The range of cosecant, sorry, domain of cosec inverse function is r minus -1 and +1, and its domain, sorry, range will, this is domain in case of cosec inverse x, cosec inverse function, cosec inverse r minus -1. Whatever the range is here, that becomes domain, and domain becomes range. Range is, sorry, range of inverse function is r minus x, such that x is equal to n pi, where n belongs to z. So this is the range inverse function. Now let us take on secant inverse or secant theta. First secant. What is the value of domain here? Similarly, domain in case of simple cosecant theta is r minus x, such that x is equal to twice n plus 1 into pi by 2. Again, where n belongs to z. What does it mean? It means that at pi by 2, it is not defined. 1 upon, for example, secant pi by 2, secant 3 pi by 2, secant 5 pi by 2, negative also. So for that, suppose secant pi by 2 I have to find out. That will be equal to 1 upon cos pi by 2. Cos pi by 2 is 0. 1.0 is not defined. Therefore, secant pi by 2 is not defined. 2n plus 1 into pi by 2, odd multiple of pi by 2, are subtracted from the set of real numbers or real angles, all the angles other than multiple of pi by 2. For that, this function is defined. That is the domain. Domain can be taken other than multiple of pi by 2 or multiple of pi by 2, odd number multiple of pi by 2. Okay, so what is the range then? Range is same as that of cosecant. This is -1, r minus -1 and +1. Just reverse of this. Domain becomes r minus -1 +1 in case of secant inverse function, and the range becomes the same, r minus x, such that x equal to twice n plus 1 into pi by 2, where n belongs to z, set of real numbers or set of integers. Z is set of integers. So this is रेंज. ये यहाँ पे इस केस में रेंज है, ये इसका डोमेन था. ये जो रेंज थी इस केस में, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इनवर्स फंक्शंस के लिए वो डोमेन रेंज हो जाता है, रेंज डोमेन हो जाता है. सिंपल. वी आर जस्ट राइटिंग बोथ. नाउ सिक्स्थ की बात करते हैं. कॉट और कोटेंजेंट. दिस कोटेंजेंट और कोटेंजेंट. Okay. Now in case of cotangent, what are the values for which this is not defined? Because pi by 2 for pi by 2 is defined, but cotangent is equal to, just like cosecant, will be r minus x. For that, I mean, this is defined only for these values other than x equal to n pi, where n belongs to z. Same as cosecant. ये cosecant, यहाँ cosecant है इसकी वैल्यूज x इक्वल टू n पाई, यहाँ पर भी x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग टू z. ठीक है, तो ये इसका डोमेन है. तो रेंज क्या आती है? रेंज विल बी r set of all real numbers, set of all real numbers is the okay set of real numbers is the value of cotangent. Okay, cotangent here. Value of cotangent is here. Set of real numbers here. Now, in the case of this, what is the cotangent? I mean, cot inverse x. For that, or cot inverse function. For that, what is domain or the range? Now, range will be 0 to pi, and r, the r is same. Is the domain here, r is the range here, that of real numbers. R here is the domain for cotangent or cot inverse function. Cot inverse function.
r, and this is 0 to pi here. You can take 0 to pi, between 0 to pi, then we can write this like this: r minus x equal to n pi. For multiple of 0 to pi, these two values cannot be, because at 0, cos 0 is 1, sin 0 is 0. 1.0 is not defined for this value other than 0 pi, but within this range 0 and pi cannot be the value for cot inverse. This is the range here. Between these 0 to pi, where 0 is less than let me take x here or theta here, less than pi, 0 is less than x is less than pi. Between 0 to pi, for 0 and pi cannot be. At 0, cot inverse is not defined. Okay. But for 0, the value is infinity. Cot 0 is infinity because cos 0 point sin 0 is 0, 1.0 is not defined. For 0 to pi, which is its in this case it's in the range between these numbers, all other values are there. This is the range here in case of cot inverse. This is how principal value, all the principal values we are writing here. One group we have selected out of number of groups. Number of groups are general values. Principal value is one of those groups which is mainly involving all those values which are for that particular trigonometric function. इस तरह से हम trigonometric function में जो वैल्यूज मोस्टली रिपीट होते हैं उनमें से एक ग्रुप जिसमें सभी वैल्यूज आ जाती हैं उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह देते हैं। ये सभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी। चलिए तो ये हो गया आपका। मैं मोस्टली इसमें इंग्लिश बोलता रहा, बट आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हैबिचुअल हो गया। ठीक है, तो इसलिए आप हिंदी में मोस्टली मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा। इसमें से अगर कहीं कुछ इंग्लिश ज़्यादा भूल जाती प्लीज़ दिस पार्डन मी फॉर दैट। ओके, नाउ कम। इसमें से क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो व्हाट आर द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, जनरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल वैल्यूज। तो वो हमने डिफाइन किया। ये सभी जनरल रेंज है और सॉरी प्रिंसिपल वैल्यूज का रेंज है, ये प्रिंसिपल वैल्यूज का डोमेन है। जो यहाँ डोमेन था वो रेंज है, जो रेंज था वो डोमेन है। इसको आप कोशिश करिए समझने की। लॉट ऑफ सोर्सेज आर देयर। अब इसमें से क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। ये जनरल प्रिंसिपल वैल्यूज मैंने इनकी रेंज और डोमेन निकाल के दिखाया टेंजेंट फंक्शंस के लिए और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। दोनों में कंपैरिजन रेंज और डोमेन इनवर्स हो जाता है, जिसे हमने पहले डिफाइन किया हुआ है। चलिए हम क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या है? क्वेश्चन थर्ड में वो कहते हैं कि हाउ टू डिफाइन इनवर्स सर्कुलर और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक किस तरह से डिफाइन करेंगे? हाउ टू डिफाइन देम ग्राफिकली। ओके, अब मैं दोनों में साइन का, जैसे सिंपल साइन थीटा का क्या ग्राफ हो सकता है एंड साइन इनवर्स का क्या हो सकता है, साइन इनवर्स थीटा और साइन इनवर्स और दो एंगल्स। ओके, लेट मी डिफाइन दैट। तो दोनों का कंपेरेटिव ग्राफ क्या होता है? पहले साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ग्राफिकल description of inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric this is trigonometric RIC functions. ओके, सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं और साइन फंक्शन वर्सेस साइन। अब जानते हैं कि साइन जो सिंपल साइन होता है, साइन इनवर्स की बात करेंगे दोनों में कैसे ग्राफ खींचते हैं। पहले सिंपल साइन थीटा और साइन फंक्शन। साइन फंक्शन लेट मी टेक फर्स्ट, नॉट साइन इनवर्स फंक्शन बट ओनली साइन फंक्शन। इसमें ग्राफ क्या हो सकता है? सबसे पहले हम इसकी एंगल्स निकालते हैं। आप जानते हैं एंगल्स माइनस वाला प्लस का वेट होता है। ग्राफ में सबसे पहले सपोज दिस इज साइन एक्स हियर, वाई इज साइन एक्स हमने ले लिया, ये वाई इज दिस वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई डैश, ओरिजिन ओ एक्स एक्स डैश। अभी हम वाई इक्वल टू साइन एक्स ले रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन फंक्शन। सिंपल साइन फंक्शन का ग्राफ क्या होता है?
एंड साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ पर हम एक्स की जगह पर एंगल्स पुट करेंगे। एक्स में एंगल हो सकता है, ये 0 वी टेक पाई/2 ये होगा, ये आपका पाई, देन 3 पाई/2 पाई एक्सेट्रा, वी टेक -पाई/2 ये हो गया -पाई -3 पाई/2 एंड -2 पाई। एक्स पर आप क्योंकि एंगल लेंगे ना, यहाँ पर सभी एंगल्स आएंगे। अब इसका जो ग्राफ खींचेगा वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम +1 एंड -1, इसलिए इसकी जो रेंज आएगी वाई की वैल्यू मैक्सिमम +1 एंड मिनिमम -1 हो सकती है। तो आप जानते हैं 0 पर तो इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर ग्राफ ड्रॉ करें साइन फंक्शन का, पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, 0 पर आपने 0 किया। अब लेट मी टेक वाई इज हियर 1, दिस इज -1 on the y-axis, मैक्सिमम वैल्यू -1 +1 होती है, इसलिए हम इस पर चलना है। दिस इज +1 ओके एंड दिस इज -1 on the y-axis। ग्राफ क्या है, सबसे पहले आपने देखा कि पाई/2 की वैल्यू साइन पाई/2 1 होती है, ये 1 होगा, पाई पर 0 होती है, 0 होगी। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ आपका हो गया -3 पाई/2 -3 × 70 डिग्री, पाई और 2 पाई की 270 डिग्री पर होती तो वैल्यू है -1, और थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, ये -1 वैल्यू है, यहाँ -1 आ जाए, इस पर 0, इस पर भी 0 होती है, इसमें ये ग्राफ ये होगा। इस तरह से इसका ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं। ओके, नाउ कम टू द लेफ्ट हैंड साइड। अभी आप देखिए कि ये कोई फंक्शन है, आपको -पाई/2 पर इसकी वैल्यू -1 होगी, ये -1, -पाई पर 0, ये 0, ये ग्राफ आपका यहाँ पर नीचे। फिर -2 -3 पाई/2 माइनस, इसलिए -1 पॉजिटिव हो जाए, इसको 1 वैल्यू जाएगी, ये 1 होगा, फिर 0 -2 पाई पर। इस तरह से साइन एक्स का और साइन फंक्शन का ये ग्राफ होता है, सिंपल ग्राफ along the axis of x। But if I define it, inverse function के बारे में बात करते हैं। What is sin inverse x? Suppose I have taken let y equal to sin inverse x, y equal to, अब इस केस में x की वैल्यू, x न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, x कैन बी -1 +1, मैक्सिमम नहीं होगा, और y पर एंगल्स लेंगे, जो y की वैल्यू जो रिजल्टेंट आएगा वो एंगल्स में आएगा। व्हाट कैन बी द एंगल्स, 0 हियर ओरिजिन, x एक्सिस, x डैश एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, y डैश एक्सिस, अगेन ये 0 है, और ये पाई/2 पाई एंड दिस इज 3 पाई/2, लेट मी टेक दिस इज 5, सिमिलरली नीचे भी -पाई/2 ये हो गया -पाई and -3 पाई/2 and here -2 पाई। अभी आपने देखा कि x की वैल्यू x एक्सिस पर 1 +1, ये 1 हो सकता है, इधर -1 मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 0 पर इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, पाई/2 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी भाई, 1 हो सकती है मैक्सिमम, वेरी 1 along the x एक्सिस, तो y की वैल्यू निकल के 1 आएगी, when x is, सॉरी x की वैल्यू 1 आएगी, ये 1, y जो पाई/2 है, x 1, ये पॉइंट है। अब मुझे ये ग्राफ गया पाई पर 0, let me take like this, then 3 पाई/2 पर -1 आई, -1 इज दिस वैल्यू here, ये आपका -2 पाई पर 0, फिर अगेन ग्राफ -पाई/2 पर 1 -1, ये -1, -पाई पर 0, अगेन दिस, here it is 1, that -3 पाई/2 +1 वैल्यू एंड 0 पर 0। ये ग्राफ along the y एक्सिस होता है इनवर्स फंक्शन। साइन इनवर्स फंक्शन को आपने देखा इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
इसे साइन फंक्शन कहते हैं। ओके, तो ये जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक वेव चलती हैं साइन फंक्शन के रूप में और कॉस फंक्शन के रूप में। साइन फंक्शन साइन वाइब्रेशन होते हैं और साइन रेज होते हैं, साइन रेज में ये ट्रेवल करते हैं। Okay, so this is your sine functions, sine inverse functions graph, and that was cos functions, so sine x functions of simple trigonometric, simple sine trigonometric function का ग्राफ ऐसे आता था इनका x, बट sine inverse x का कैसे आता है, sine inverse function का ग्राफ along y axis आता है। Okay, इस तरह से सिर्फ x axis पर ये 1 और -1 के बीच में, -1 + 1 के बीच में ये ग्राफ से मूव करता है, -1 + 1, राइट। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब आते हैं कॉस एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, उसका ग्राफ खींचते थे, सभी का ग्राफ खींचते। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं। सेकंड फंक्शन, सेकंड इज कॉस लेट वाई कॉस, इसका ग्राफ खींचते हैं। तो अगेन लेट मी टेक द coordinate function or coordinate graph here. This is x-axis origin. Okay, in coordinate geometry we are discussing about this is y dash axis. अब इस केस में cos x की क्या क्या वैल्यू होती है मैक्सिमम, आप जानते हैं 0 पर मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, पाई पर -0 और पाई के बीच में वैल्यू करती है, और ये फंक्शन हो सकती है इसकी वैल्यू भी -1 + 1 के बीच में, आप जानते हैं रेंज इसकी -1 + 1 के बीच में होती है। तो एक्स एक्सिस पर आपने अगेन ये 0 लिया, ये π/2, ये पाई, एंड दिस इज 3π/2, 2π। लेट मी टेक अप टू दिस पॉइंट। दूसरा -π/2, हियर इट इज -π, ये है -3π/2 और ये -2π। ठीक है जी, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जो y रिजल्टेंट क्या हो सकता है, +1 - मैक्सिमम, आप 1 का रखेंगे दैट y ये 1 है, पॉजिटिव 1, नेगेटिव -1 नीचे, एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती है, नीचे नेगेटिव वैल्यू होती है। आप जानते हैं +1 और -1 ग्राफ पे आएगा। आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू π/2 पर 0 होती है, cos π/2 0, समझो 0 पर ये वैल्यू मैक्सिमम 0 पर 1, π/2 पर 0, पाई पर -1, इसलिए -1 भी नीचे ग्राफ पे आ जाए। 3π/2 पर 0 अगेन, 2π की वैल्यू पॉजिटिव 1 होती है, +1, दिस इज +1 हियर। ओके, हैव अ वैल्यू आई हैव टेकन 1 हियर, नो प्रॉब्लम। Then 3, this is 3π/2, this is 5π/2, 5π/2 is 0। सिमिलरली यहाँ देखिए दूसरे वाले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थर्ड क्वाड्रेंट में रख जाएगा, तो ये -1 इस पर या -π की वैल्यू -1 आती है, क्योंकि -π की वैल्यू -1 होती है। तो ये वैल्यू पहले तो ये 0 आया, ये -1 यहाँ पर आएगा, -3π/2 0, अगेन ये वैल्यू 0। ये ग्राफ हो सिंपल ग्राफ, ये अबव एंड बिलो, इस तरह से आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, बट 0 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, -2 +1 0 0, मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये 0 0 होते हैं, 3π/2 5π/2 0 0 0, और पाई 2π 3π एक्सेट्रा, इन पर ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 0 पर पॉजिटिव नेगेटिव अगेन, ओके 3π पर नेगेटिव। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ है। ये cos x का y = cos सिंपल cos फंक्शन, आई मीन cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर याद है, इनवर्स फंक्शन क्या होगा, जैसे रिवर्स हो जाएगा, ये वाला ग्राफ y एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, वी जस्ट इसका रेंज डोमेन या तो डोमेन रेंज हो जाता है। अब cos इनवर्स x की बात कर रहे थे, दैट y = cos इनवर्स x,
अगेन अब आप देखें x की जगह पर न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं -1 प्लस -1 पर ये वैल्यू पाई आती है y की वैल्यू और +1 पर 0 आता है। इसका मतलब 0 से लेकर ये 0 and here it is pi by 2. This is pi here, this is 3 pi by 2. यहाँ पर ये 2 pi इतना ही लेते हैं। चलिए नीचे -pi by 2, दूसरा -pi -3 pi by 2 and this is -2 pi। ठीक है जी। अब देखते हैं ग्राफ। यहाँ 1 0 पर 1 हो सकता है, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम -1 वैल्यू हो सकता है। एक्स एक्सिस के अलावा ये ओरिजिन एक्स डैश एक्सिस वाई डैश एक्सिस। ठीक, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में cos इनवर्स एक्स को आप ड्रॉ करें। अब जानते हैं cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो इस 1 पर पाई पर 0 मान पाई 0 1 पर ये ग्राफ आया 1 मैक्सिमम 0 पर एंड दिस इज 0। ये लेट मी टेक like this convenient attack। okay, पाई पर -1 दिस इज -1 x की वैल्यू -1 आई, -1 आप यहाँ पर चाहते ये -1 तो 3 by की वैल्यू 0 अगेन लाइक दिस। ओके इस 2 पर लेट मी टेक प्रॉपर हियर इट इज 1 2 पाई की वैल्यू +1 होती है मैक्सिमम 1। इस तरह से ये ग्राफ आपका ड्रॉ हो जाएगा। नीचे देखिए मान का वेट वैल्यू भी -1 आएगी, -1 0 अगेन दिस 0 अलोंग द बाई एक्सिस इसकी cos इनवर्स एक्स की वैल्यू। इस तरह से इनवर्स फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट की बात करते हैं और इस tan थीटा tan x एंड tan इनवर्स एक्स। थर्ड ग्राफ लेट मी ड्रॉ। What is next graph? Okay, this is third, or let me take C part here, or we can write third, simple in Roman letter. Third one, okay. Third one is let y equal to 10x. पहले तो हम 10x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 फंक्शन। ओके देन tan इनवर्स x का ड्रॉ करें, दोनों का कंपैरिजन आप देखेंगे जस्ट इसका रिवर्स होता है। अगर ये अलोंग ये आता है देखिए इस केस में ग्राफ आएगा क्योंकि 0 कितना होता है sin 0 0 होता है, tan 0 भी 0 होता है। जो साइन की मोस्टली वैल्यू होती है उनके हिसाब से होता है। sin 0 के ऊपर सॉरी π/2 पर ये डिफाइन नहीं, 3π/2 पर डिफाइन नहीं, -π/2 पर मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये डिफाइन नहीं होता, इन्फिनिटी वैल्यू आती है। इसका मतलब देखिए अगेन x वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पर। दिस इज π/2 ओके दिस इज पाई हियर ओके दिस इज x एक्सिस के अलावा पहले ये वैल्यू लीजिए x एक्सिस x डैश एक्सिस y एक्सिस y डैश एक्सिस। चलिए अब आप देखेंगे π/2 पर ये डिफाइन 0 तो 0 π/2 पर ये डिफाइन नहीं -π/2 दिस इज -3π/2 इफ आई टेक लेट मी टेक दिस पाई हियर तब ये आ जाता है 3π/2 और ये 2 पाई नहीं ले लेते ओके यहाँ पर लेते हैं -5 -3π/2 देन -2 पाई। ये आप ग्राफ ड्रॉ करें। अभी देखेंगे π/2 पर इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं π/2 से होती हुई 3π/2 से होती हुई 5π/2 लेट यहाँ था 5π/2 यहाँ से होती हुई लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सिमिलरली -π/2 -3π/2 ओनली। चलिए इतना ही ड्रॉ करते हैं। अब आप ग्राफ कैसे खींचते हैं क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है मेरा पॉइंट, बट π/2 पर ये इन्फिनिटी को डिफाइन होता है, इन्फिनिटी पर मीट होता है। उस लाइन को जाके इन्फिनिटी को मीट करें। हम एसिम्पटोट्स की
एसिम्पटोट्स बोलते हैं, इन लाइंस को आप एसिम्पटोट्स बोलते हैं। ये एसिम्पटोट्स पाई पर भी वैल्यू 0 होगी, ठीक है, 3/2 पर भी -0 होगी ये वैल्यू। और if I sorry not like this, let me take this pi/2 value positive but not not plus infinity, this is non-infinity, ये आएगा plus infinity minus infinity। ये ग्राफ पाई पर 0 then -pi/2 पर सॉरी कुछ -3/2 पॉजिटिव वैल्यू होती है इसमें, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव में नीचे से जाएगा pi/2 to pi, it is negative from this point, it will go pi/2 to this, I'm sorry, this is second quadrant, pi/2 to pi, the second quadrant 10 is negative value, negative infinity to positive infinity, going up to 3/2 it is positive, the third quadrant। इस तरह से ग्राफ चलता है, ओके। देन more than 3/2 is negative, 3/2 to 5/2 or 2 pi is negative in the fourth quadrant, negative infinity, then positive, so it has come in the first quadrant। So these are the asymptotes known as asymptotes, okay। Similarly this value, because at -pi/2 to -3/2, let me take this, here it is, okay। So these are the asymptotes, we have to just draw them, they are known as asymptotes, okay। Asymptotes, we have to take them as asymptotes। Sin inverse, cos inverse we have discussed about, tan inverse we have discussed about। now tan inverse की बात करते हैं, tan inverse क्या आएगा भाई, ये वैल्यू आ गई सिंपल tan s की। अब tan इनवर्स s की बात करते हैं, मैं ये मार्क कर देंगे, ओके। लेट मी टेक tan इनवर्स s, अगर ये y का रूट tan इनवर्स s है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, x axis this is x dash axis origin, y dash axis। अब इसमें क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसमें आप ड्रॉ करते हैं tan इनवर्स s का फंक्शन, जो रेंज थी डोमेन एंड डोमेन का रेंज। देखिए x की जगह पर आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह एंगल साइन, y पर एंगल लेट मी टेक ये 0, ये pi/2 हुआ, ये पाई हुआ, 3/2, ओके, ये 2 हो गया। चलिए इतना लेते हैं, -pi/2, देन -5 नीचे एंगल्स ले रहे हैं आप, -3/2 एंड ये -2 पाई, नेगेटिव वैल्यू। अब x में इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, और द मैक्सिमम वैल्यू अब pi/2 से होती पैरेलल लाइंस खींचती हैं एक्स एक्सिस के अलावा, -pi/2 के से होती हुई 3/2 से होती हुई लाइन पैरेलल लाइंस, ओके। देन -3/2 से होती हुई लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉन हियर। अब आप देखें ये -5/2 -5/2 ऑल्सो अब इतना ही लीजिए। चलिए अब देखिए, सबसे पहले 0 पर तो इसकी वैल्यू 0 होती है, tan 0, ये 0 0 ये का ये एंगल ये पॉइंट है, यहाँ से लाइन जाएगी, ओके। क्या होगा एसिम्पटोट 2π/2 पर पॉजिटिव इन्फिनिटी आती है, प्लस इन्फिनिटी, तो x यहाँ y वैल्यू y इन्फिनिटी आई, इन्फिनिटी पर मीट करेगा, और -π/2 पर माइनस इन्फिनिटी होती, ये आया। Let me take this asymptote here, passing through 0 and meeting at positive infinity,
This is the graph here. Again, this is minus infinity to plus infinity. For that pi by 2 to 3 pi by 2 it is positive. Plus infinity it is. For that 3 pi by 2 it is infinity, positive infinity. In this way ये एसिम्पटोट्स आ जाते हैं. ठीक है. एसिम्पटोट्स हमेशा क्या होते हैं, वो लाइन्स होती हैं, स्ट्रेट और टेंजेंट लाइन्स होती हैं जो कि इन्फिनिटी पर मीट करती है. उस लाइन को एक्सटेंड करती है, आपको थीटा इन्फिनिटी पर. ये एसिम्पटोट्स की शेप होती है. देन यहाँ से 2 पाई पर 0. अगेन एसिम्पटोट्स ये ऐसे आ जाएगा. आगे ऊपर जाके से 5 पाई बाई 2, अगर ये 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 किसी लाइन में जाती है, ये ऐसे नीचे आती जाएगी. ओके. देन माइनस पाई एंड माइनस पाई बाई 2 पर मीट करता है. ऑल दीज आर द asymptotes along this line. I mean, angles we are taking along the y-axis, and asymptotes are along x-axis. X-axis पर infinity पर meet करता है. So these are the asymptotes in case of tan inverse x. ठीक है. tan inverse x के केस में y equal tan inverse x, इससे ऐसे आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो ग्राफिकली आपको मैंने रिप्रेजेंट किया. चलिए अब नेक्स्ट बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस उनके बारे में बात करते हैं. क्या क्या है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ओके, उनके बारे में बात करते हैं. अब चौथा पॉइंट ले लेते हैं. लेट मी टेक कोसेक इनवर्स एक्स. कोसेक पहला तो हम ये फोर्थ पॉइंट है वाई कोसेक इसका ग्राफ आता है. आप देखिए, आपने डोमेन लिया था, इसका डोमेन है, इसकी वैल्यू एन पाई को छोड़ के, पाई के जो मल्टीपल है 0 पाई 2 पाई 3 पाई एक्सेट्रा, इनको छोड़ कर बाकी उन पर ये डिफाइन नहीं होता, क्योंकि 0 पर ये डिफाइन नहीं है. चलिए हम पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं. एक्स एक्सिस ओ एक्स डैश वाई एंड वाई डैश. ओके. नेगेटिव वैल्यूज बिलो ऑन द वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस. अब जब इसकी बात करते हैं कि भाई कोसेक एक्स की क्या क्या वैल्यू होती है. कोसेक 0 की वैल्यू डिफाइन नहीं, इन्फिनिटी. इट इज इन्फिनिटी. 92 पर अगर हम पाई बाई 2 लेते हैं, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2,